So in the last class, we were dealing with the enthalpy, and हमने enthalpy को अलग अलग conditions में enthalpy का फार्मूला क्या होता है हमने डिराइव किया था. ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मूले वहाँ पे जो डिराइव किए थे दैट वाज enthalpy का डेफिनेशन था H is equal to U plus PV. This is the definition of enthalpy. फिर हमने at constant pressure मैंने देखा था DH इज इक्वल टू DQP होता था एंड दैट इज इक्वल टू CP dt. DH इज इक्वल टू CP dt एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ से रिलेशनशिप आ गया था CP इज इक्वल टू del H by del T at constant P. Then we saw for ideal gas. For ideal gas, DH is equal to CP dt. This is always applicable. For any other substance, this is applicable only if the pressure is constant, right? But for ideal gas, this is always applicable. ऐसा क्यों? Because ideal gas के enthalpy का वैल्यू प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है. So we saw this, and at last we derived one formula. And also we saw for ideal gas. For ideal gas, enthalpy का एक्सप्रेशन आया था DH is equal to du plus nr dt, एंड इसका जब हम लोग इंटीग्रल फॉर्म लिखते हैं तो डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus nr डेल्टा T बन जाता है. So these are the various expression of enthalpy which we derived in the last class, right? One is this one, then this one, and then this one, right? And this is the definition. So basically ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, करेक्ट? क्लियर? Done? So these things we did in the last class. Just for the sake of connecting with the class, I just revise it. Now next we will see enthalpy for a chemical reaction. Enthalpy change for a chemical reaction or phase transformation. This is very important formula. Okay. Next we will see enthalpy change for chemical reaction. Enthalpy change for chemical reaction or phase transformation. Okay. मानिए यहाँ पे ध्यान रखना, gaseous phase must be present. Gaseous phase must be present. ओके. हाँ, गैसियस फेज का मतलब होता है दैट एटलीस्ट उसमें एक कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि गैसियस स्टेट में है. एटलीस्ट वन. मोर देन वन आर देयर, इट्स वेरी नाइस, बट कम से कम एक ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए जो कि गैसियस फेज में है. समझ आया? और जनरली मुझे पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है
तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, करेक्ट? टेम्परेचर इज कांस्टेंट. Now we know that H is equal to U plus PV. So in the place of PV I can write nRT because मैं gaseous phase पे अप्लाई कर रहा हूँ. तो PV की जगह पे हम लोग nRT लिख सकते हैं. आप लिख सकते nRT. Now see, now DH will be nothing but DU plus, अब यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट है, केवल नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे. तो हमारा क्या बन जाएगा? RT इंटू DN, राइट? But temperature is constant. For a chemical reaction, temperature is constant throughout the process. Or for the phase transformation, temperature is constant throughout the process. Only there is going to be change in the number of moles. So DH is equal to nothing but DU plus RT into DN, right? इसको integrate कर दो. So this becomes delta H is equal to delta U plus delta NG RT. DN का इंटीग्रेशन हो गया डेल्टा NG, डेल्टा G, और वी कैन राइट डेल्टा NG RT. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना, करेक्ट? सर इधर बी क्या है? नाउ डेल्टा NG नथिंग बट, सॉरी, डेल्टा NG नथिंग बट चेंज इन द gaseous moles, or we can say number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. For example, let us say I am taking a question, H2O liquid giving you 2H2 gas plus O2 gas. तो इसका डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी? G represent the gas, N means change in the mole. Delta N means change in the mole. This G is representing the gaseous state. Now see number of moles of gaseous product. यहाँ पे 2 मोल है हाइड्रोजन के, 1 मोल है ऑक्सीजन का, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, राइट? बात समझ आएगी नहीं? हेलो, व्हाट हैपेंड? नहीं सर, नहीं आया. यहाँ पे डेल्टा देखो, यहाँ पे बिगिनिंग से देखो, we are calculating enthalpy change for a chemical reaction of phase transformation. ना यहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए. एंड वी नो फॉर अ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट. सिमिलरली फॉर द phase transformation temperature is constant throughout. Now I know H is equal to U plus PV by definition. Okay. Now since we are taking the gaseous phase, तो हम लोग PV को nRT लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो DH is equal to DU plus, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, R भी कांस्टेंट है, चेंज केवल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज होंगे. तो RT इंटू GN हो गया, करेक्ट? हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT होगा कि नहीं? DN का डेल्टा N बन जाएगा कि नहीं?
हाँ ये होगा। वर्ड जी बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं गैसियस वाले मोल्स ले रहा हूँ केवल, कि उस रिएक्शन में कोई भी सॉलिड या लिक्विड स्टेज में है उसको मुझे कंसीडर नहीं करना है। तो दिस लेक्चर जी इज रिप्रेजेंटिंग द गैसियस फेज। में इस फार्मूला को आपको याद रखना है, फार्मूला यू हैव टू मेमोराइज। जितने भी मैं फार्मूले बता रहा हूँ उनको याद रखना है डायरेक्टली। So delta Ng is nothing but change in the gaseous mole. That is nothing but number of moles of gaseous project minus number of moles of gaseous reactant. तो मैं एग्जांपल लिया है 2H2 और लिक्विड से बन रहा है 2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा Ng इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। अब गैसेस प्रोडक्ट देखो 2 मोल है यहाँ पे, 1 मोल है यहाँ पे, तो 2 + 1 3 हो गया। माइनस रिएक्टेंट में कोई भी गैसेस स्टेज में है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ यस सर। तो डेल्टा Ng की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं? अब समझ आया? Now let us see some more example and calculate delta Ng for them. Suppose I have CaCO3 solid, इसको जब हीट करते हैं तो बन जा रहा है CaO solid प्लस CO2 गैस। तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे ये तो सॉलिड है, 0 हो गया, प्लस ये गैस है 1 माइनस ये भी सॉलिड 0, डेल्टा Ng 1 आ गया। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव 2 गैस plus 3H2 gas giving you 2NH3 gas। इसके लिए निकालो डेल्टा Ng। यहाँ पे 2 है, माइनस इधर 1 माइनस 3, दिस इज नथिंग बट -2, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आई हैव N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग यू 2NO गैस। यहाँ पे डेल्टा Ng निकालो, दिस इज 2 माइनस दिस इज 1 एंड 1, 0 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस पांच के लिए। चलो वहां पे कर लो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको केयरफुली देख के रहिएगा ना। सिमिलरली लेक्चर से फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पे अप्लीकेबल ही नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज कोई भी गैसेस फेज में प्रेजेंट ही नहीं है। दिस फार्मूला इज नॉट अप्लीकेबल हियर बिकॉज एक भी रिएक्टेंट या प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो कि गैसेस फेज में प्रेजेंट हो। जैसे एक्स लिक्विड से एक्स गैस बन रहा है, तब यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, राइट। एक्स सॉलिड से एक्स गैस बन रहा है, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, तब भी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, राइट। बात समझ आ गई कि नहीं? ये फार्मूला फेज ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसियस फेज इन्वॉल्व हो उनके लिए एप्लीकेबल होता है, राइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस variation of delta RU and delta RH with temperature, and this is known as Kirchhoff's law। ये फिजिक्स वाला किरचॉफ्स लॉ नहीं है, दिस इज केमिस्ट्री वाला किरचॉफ्स लॉ।
यहाँ पे डेल्टा आर यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा आर एच रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या चेंज होता है। तो मुझे पता है कि डी यू इज इक्वल टू नथिंग बट डी क्यू और वी कैन से डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी होता है, राइट? करेक्ट, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, करेक्ट? और वी कैन से यदि इसको हम लोग उसके टर्म लिखना चाहें डी यू इक्वल टू सी वी डी टी, तो यहाँ पे यदि मैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन हम लोग U को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर यू के साथ। इंटरनल एनर्जी नथिंग बट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एंड CV को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर सी वी, डेल्टा आर सी वी, राइट? तो ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, डी ऑफ डेल्टा आर यू इज इक्वल टू डेल्टा आर सी वी इंटू डी टी, एंड इसको इंटीग्रेट कर दो। इससे हमको पता चल जाएगा टेम्परेचर के साथ आपके डेल्टा आर यू में किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा आर यू क्या है, सिमिलरली हम लोगों को पता है कि H इज इक्वल टू होता है, और वी कैन से डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी डी टी। तो यहाँ पे हम H को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर एच से, Cp को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर सी पी से। डेल्टा आर सी पी क्या भी मैं देखने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ से D इज इक्वल टू डी ऑफ डेल्टा आर एच विल बी इक्वल टू डेल्टा आर सी पी डी टी, एंड इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में कैसे चेंज होता है वो मुझे पता चल जाएगा, राइट? पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं इन टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, सिमिलरली इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कॉपी करो इसको एक बार, आप क्या मतलब चेंज इन प्रेशर? मैं बताता हूँ अभी। नौशी, मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डेल्टा आर यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा आर सी वी इंटू डी टी। ये हुआ इंटरनल एनर्जी के लिए। सिमिलरली एंथैल्पी के लिए डी ऑफ डेल्टा आर एच इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी एंड डी टी। ना यहाँ पे डेल्टा आर यू का रिप्रेजेंट करता है डेल्टा आर यू, मुझे पता है डेल्टा आर यू रिप्रेजेंट द, पहले बता चुका हूँ, दिस रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो डेल्टा आर, सपोज हमारा हमने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आई हैव रिएक्शन A mole of A plus B mole of B giving you C mole of C plus D mole of D, right? ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा आर यू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर यू नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स C मल्टीप्लाइड बाई मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ C प्लस
D multiplied by molar internal energy of D minus A multiplied by molar internal energy of A minus D multiplied by molar internal energy of D. तो एक्चुअली डेल्टा आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन. UMC is representing the molar internal energy of the C. C के एक मोल का इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है. अब C के मोल कितने हैं? C हैं, इसीलिए मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया. Similarly, UMD is representing the molar internal energy of the D. एंड उसके मोल एंड D तो मैंने G से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. बिकॉज आपको चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालना है. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? ये हो गया. रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? ये हो गया. मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट. सिमिलरली डेल्टा आर एच इज नथिंग बट C into molar enthalpy of C plus D into molar enthalpy of D minus A into molar enthalpy of A minus B into molar enthalpy of B. And in the similar fashion, delta RCB represents the change in the heat capacity at constant volume. Cv is the heat capacity at constant volume and delta Ru is representing the change in the heat capacity at constant volume for a reaction. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है internal energy of the product minus internal energy heat capacity of the product minus heat capacity of the reactant. So C multiplied by CVM. CVM is molar heat capacity because मैं मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. of C plus D into molar heat capacity of D minus A into molar heat capacity at constant volume of A minus B into molar heat capacity at constant volume of D. And similarly delta RCP will be nothing but C into molar heat capacity at constant pressure of C plus D into molar heat capacity at constant pressure of D minus A into molar heat capacity at constant pressure of A minus B into molar heat capacity at constant pressure of D. ये भाई नोटेशन है और कुछ इन एक्सप्रेशन को देख के डरिएगा मत. ये जस्ट सिंपली नोटेशन और कुछ है नहीं. बात समझ आया कि नहीं? हेलो. ओके. सो नेक्स्ट वी नो दैट मैंने उन एक्सप्रेशन का मतलब सीख लिया. तो डेल्टा डी ऑफ डेल्टा आर यू इक्वल टू डेल्टा आर सी वी into dt, and similarly parallel to that is d of delta r h is equal to delta r cp and dt. अब देखो suppose case 1 is that if delta r cv is temperature independent, जैसे टेम्परेचर के साथ डेल्टा आर सीवी का वैल्यू चेंज नहीं होता. ये कब चेंज नहीं होगा? जब इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटीज टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगी. बिकॉज ये क्या है एक्चुअली? ये इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस ही तो है. तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तभी होगा जब इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, राइट? ये बात समझ आती है कि नहीं? ठीक है. तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो क्या करता है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ और इसका इंटीग्रेशन बन गया डेल्टा ऑफ डेल्टा आर यू.
ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया डेल्टा आर सी वी, ये बन गया डेल्टा टी। लिमिट लगा दो तो ये बन जाएगा डेल्टा आर यू टू माइनस डेल्टा आर यू वन इक्वल टू डेल्टा आर सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। सिमिलरली इसके केस में भी मान लेता हूँ, सपोज केस वन यही है, तो डेल्टा आर सी पी एम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये बन जाएगा डेल्टा ऑफ डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर सी पी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ, ये बन गया डेल्टा टी। लिमिट डालने के बाद दिस इज नथिंग डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी टी टू माइनस टी वन। यह क्या है? दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 and this is the enthalpy change of the reaction at temperature T1. करेक्ट? बात समझ आ गई? हाँ हाँ कॉपी कर लो। ओके, let's see. Now case 2 is if delta R C P suppose is temperature independent, temperature dependent, sorry, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है लेटेस्ट से। अब डेल्टा आर सी पी नथिंग बट इट डिपेंड्स अपॉन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटीज टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होंगी। तो लेटेस्ट से मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, ये रिएक्शन ले रहा हूँ, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिविंग यू C मोल ऑफ C। या थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड एग्जांपल ले लेता हूँ, इन मोल्स को हटा देता हूँ just for the sake of understanding the thing. Let us take simple example. Let us take simply A plus B giving you C plus D. Now let us say heat capacity of A depends on the temperature at A1 plus B1 T. Heat capacity of B depends on temperature at, जैसे इसको मोलर बोल देते हैं, A2 plus B2 T. Yes. ये CPM वाला A1 plus B1 किस कहाँ से आया? ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग एनी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ये आपको कोई एग्जाम में दिया होगा, वो आपको वो लेना है। आई एम टेकिंग एनी एग्जांपल, इसको आप क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं। सीपीएम ऑफ सी लेट अस से A3 plus C3T and CPM of D let us say A4 plus C4T, राइट? तो यहाँ से हमारा डेल्टा आर सीपीएम क्या बन जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट सीपीएम ऑफ सी प्लस सीपीएम ऑफ डी माइनस सीपीएम ऑफ ए माइनस सीपीएम ऑफ डी। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? सीपीएम ऑफ सी नथिंग बट A3 plus B3, sorry this is B3 not C3 and this is also B4, B3T plus CPM of D nothing but A4 plus B4T. Similarly CPM of A nothing but A1 plus B1T and similarly CPM of B nothing but A2 plus B2T। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये बन जाएगा A3 प्लस A4 माइनस A1 माइनस A2 प्लस B3 प्लस B4
माइनस B1 माइनस B2 इंटू टी। अब इस वैल्यू को, इस डेल्टा आर सीपीएम की वैल्यू को मैं एक्सप्रेशन में रख के इंटीग्रेट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको वहां पे कर लो पहले। ओके, लेट्स सी नाउ, इसको पुट कर दो एक्सप्रेशन में बस। आई नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डेल्टा आर एच इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा आर सीपीएम, जहाँ पे हमारा आ जाएगा A3 प्लस A4 माइनस A1 माइनस A2 प्लस B3 प्लस B4 माइनस B1 माइनस B2 इंटू T होल dt। इंटीग्रेट कर दो T1 से T2 and this is from delta R H1 to delta R H2। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन is equal to, this will be nothing but A3 plus A4 minus A1 minus A2 into delta T, जो कि 2 minus T1 बन जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सिंपल, and this will be nothing but B3 plus B4 minus B1 minus B2 by 2। by 2 कहाँ से आया, अगर इस t का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ये वाला 2 है, एंड टी स्क्वायर को लिमिट डालने के बाद हम लोग टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ हाँ सर। तो कर लो कॉपी फिर। डन हो गया भाई? ये तो हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट। नॉट का मतलब होता है हमेशा स्टैंडर्ड कर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करने के पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड स्टेट? तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है मैं आपको बताया था पहले, फर्स्ट चैप्टर में बताया था ये। तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज एनी गिवन टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज एनी गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है, एनी गिवन टेम्परेचर। एंड स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या होता है? स्टेट ऑफ एलिमेंट, सपोज किसी एलिमेंट के बहुत सारे एलेक्ट्रॉप्स हैं, तो उसमें जो मोस्ट स्टेबल एलेक्ट्रॉप होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड अज्यूम करते हैं। मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप।
बात समझ आई? तो हाँ ये सब सर। स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। तो जब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। कहीं पे टर्म स्टैंडर्ड है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर में उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मेजर किया जा रहा है, राइट? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ओके, हाँ सर। okay. Now let us define the standard enthalpy of formation. Write down the definition. It is the enthalpy change. It is the enthalpy change when it is the enthalpy change when 1 mole of substance when 1 mole of substance is formed when 1 mole of substance is formed from their constituent elements from their constituent elements in their respective standard states in their respective standard states. Once again, I am repeating the definition. It is the enthalpy change when 1 mole of substance is formed from their constituent elements in their respective standard states. हाँ सर। क्लियर? तो यहाँ पे जो टर्म 1 मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल को अंडरलाइन करिएगा। टर्म कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, constituent element is very important. And also term standard state. So these three terms को थोड़ा फोकस करना है. Let us take example just to illustrate these three terms. ठीक है? तो ये क्या बोलता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस नथिंग बट जब हम लोग उस सब्सटेंस को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. गॉट द पॉइंट? फॉर एग्जांपल लेट अस से 2H2 gas plus O2 gas giving you 2H2O liquid. सपोज मैं लिख रहा हूं the enthalpy change of this reaction is equal to enthalpy of formation of water. Is this equation correct or not, or is this statement is correct or not? नो सर। प्रॉब्लम क्या है तो स्टैंडर्ड सर भाई? एक तो वाटर 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 का है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है कि नहीं होता? हाँ तो हमारा डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन को पढ़ो वर्ड बाय वर्ड. हाँ सर पढ़ लिया। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यदि ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है? एंड इफ इट इज नॉट करेक्ट देन व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक तो मोल नहीं है मतलब यस, वन मोल प्रॉब्लम ये है 2 मोल है. मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा? when 1 mole of the substance is formed from their constituent element in the standard state.
तो देखो H2O लेता हूँ। H2O के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट होता है H2 गैस एंड O2 गैस। तो ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, उन्हीं से बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है वो भी मुझे पता है, रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट होती हैं एंड डाई मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट में भी है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है मुझे। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? वाटर के 2 मोल बन रहे हैं, 2 मोल्स आर गेटिंग फॉर्म, इसमें समस्या है। मैंने बोला था 1 मोल के लिए आपको देखना है, करेक्ट? तो इसमें प्रॉब्लम आई, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। सही स्टेटमेंट क्या होगा? डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट H2O लिखूं, ये सही है। ये डेल्टा एफ एच नॉट के डबल है, बिकॉज 2 मोल है, करेक्ट? बात समझ आई? यस सर। ठीक, सर यस। ये जो लाइक स्टैंडर्ड स्टेट का जो है ना फंडा, जो आप बताए कि लाइक, तो मेरे को वो समझ नहीं आया। आई मीन स्टैंडर्ड सर अगर, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ हाँ उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म गैसेस फॉर्म है कि नहीं? हाँ फिर ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है? गैसेस ही है, डायमोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ यस सर। तो है हाँ स्टैंडर्ड। वो ठीक है। तो लेकिन रिएक्टेंट में वाटर है ना, वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर का भाई मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है? लिक्विड ही होता है, रूम टेम्परेचर पे वाटर के स्टेट किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड से। तो बस, तब तो अपनी तब तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ सर ठीक है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं अगला। ये तो नंबर ऑफ मोल को एक्सप्लेन कर दिया मैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3 गैस प्लस HCl गैस गिविंग यू NH4Cl सॉलिड। तो मैं लिखता हूँ डेल्टा आर एच नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ NH4Cl solid. Is this correct or not? Is it correct or not? नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में समस्या क्या है? हाँ जहाँ तक मेरे को लगता है HCl रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वो सब छोड़ो बाबा, यहाँ पे देखो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो पहली बात तो ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? नॉट गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। रिएक्शन में भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अरे बाबा, वो तो दूसरी बात है, वो तो कंपाउंड के फॉर्म में है ना, डायरेक्ट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट दिए होने चाहिए। ये भी डायरेक्ट। ओके, so this is the problem here. अब जब उसको बना रहे हो तो ऑब्वियसली जिन कंपाउंड से बनाओगे उसमें भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन होगा ही ना। यदि वही नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा वो? हाँ वो भी वो खतरनाक आंसर देते हो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो उसमें प्रेजेंट है। और जब इसको बनाना है भाई, तो आप किसी से भी बनाओ, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं हो तो कैसे बना पाओगे? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी हाफ N2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ CO2 गैस giving you NH4Cl solid. Now delta RH naught of this reaction will be equal to the delta H naught of NH4Cl solid.
बात समझ आई? नो सर। यहाँ पे देखो भाई, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है कि नहीं? नहीं, इसका 1 आप मोल बन रहा है कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है? तो फिर अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना पड़ेगा। क्लियर? हाँ सर। और मैं फिर लिख रहा हूँ। नहीं सर, लिख रहा हूँ। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। कार्बन सॉलिड डायमंड प्लस O2 gas giving you CO2 gas. So delta R H naught of this reaction is equal to delta F H naught of CO2 gas. Is this correct or not? So we know that there are three allotropes of carbon, diamond, graphite, and next one is fullerene. But the most stable allotrope is the graphite. Diamond is not the most stable allotrope. तो इसलिए मोस्ट स्टेबल ग्रेफाइट है, तो हम लोग ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। तो यहाँ पे सही क्या होगा? कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग यू CO2 गैस। दिस इज करेक्ट। डेल्टा R H naught of this reaction will be equal to delta F H naught of CO2 gas, because carbon solid graphite is the standard state of carbon, not diamond. Clear? हाँ सर। Okay, copy it. Now let's say that delta F H naught of element is equal to 0. किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा F H naught of H2 गैस, इट इज 0. डेल्टा F H naught of Cl2 gas, it is 0. डेल्टा F H naught of सोडियम सॉलिड, माइंड इट, उसका स्टैंडर्ड स्टेट लेना है, दैट इज 0. डेल्टा F H naught of Br2 लिक्विड इज 0, बिकॉज Br2 मुझे पता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. डेल्टा F H naught of I2 सॉलिड इज इक्वल टू 0, बिकॉज आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ये बात समझ आया कि नहीं? हाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होता है. करेक्ट? क्लियर? हाँ हाँ सर। Now one more thing, enthalpy of formation of H plus 1 molar, this is also 0. 1 molar H plus का भी enthalpy of formation 0 लिया जाता है. तो ये तो फिर इन्हीं एलिमेंट से ही होगा, सभी एलिमेंट का होगा। नहीं, कोई भी एलिमेंट, मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए यहाँ पे. एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट है लिक्विड, आयोडीन का सॉलिड, बिकॉज ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट करता है, सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो एनी एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, राइट? एलिमेंटल फॉर्म.
एंड सर और एक चीज पूछना था बताइए। कि एंथैल्पी मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी किसी कंपाउंड में ना, नहीं इसीलिए भाई, एंथैल्पी पूछ। एंथैल्पी का डेफिनेशन मैं आपको बता देगा। एंथैल्पी नथिंग बट इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, ये होता है डेफिनेशन एंथैल्पी का। हाँ ये तो ओके, क्लियर। हाँ सर। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट लॉ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो तब से फर्स्ट क्लास चल रहा था। अभी भी फर्स्ट लॉ ही चल रहा है। These are the terms related to the first law only. So let us do some very easy questions. Write down first question. A system is provided 50 joule of heat. A system is provided 50 joule of heat. सर Mm-hmm. सिस्टम कर रहे हैं कि सिस्टम से कोई कर रहा No, है? no. A system is provided. अच्छा उससे कोई कर A रहा system is provided 50 joule of heat, है। हाँ and the work done on the system is 20 joule. And the work done on system is 20 joule. What is the change in the internal energy? What is the change in the internal energy? Once again, I am repeating the question. A system is provided 50 joule of heat and work done on the system is 20 joule. What is the change in the internal energy? करिए इसको। बोला है what the question is telling. A system is provided 50 joule of heat, मतलब सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है, तो Q पॉजिटिव होगा प्लस 50 जूल। और उसके बाद क्या बोला है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, 20 जूल है। पूछा क्या है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मुझे पता अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू कितना है 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 जूल, मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी 70 जूल बढ़ जा रहा है, राइट। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A gas occupies 2 liter at STP. A gas occupies 2 liter at STP. Then हाँ it is सर। provided, it is provided 300 joule heat. It is provided 300 joule heat so that its volume becomes 2.5 liter. So that its volume becomes 2.5 liter at 1 atm. At 1 atm. Calculate change in its internal energy. Calculate change in its internal energy. करिए भाई, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। A gas occupies 2 liter at STP. It is provided 300 joule heat so that its volume becomes 2.5 liter at 1 atm. Calculate change in its internal energy. Do it. She. So you have been given that V1 is 2 liter, beginning में वॉल्यूम 2 लीटर था, एंड अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट, मतलब सिस्टम को हीट सप्लाई किया जा रहा है, तो Q पॉजिटिव होगा प्लस 300 जूल
एंड बोला फाइनल वॉल्यूम हो जा रहा है 2.5 लीटर, प्रेशर दे रखा है 1 atm। तो सबसे पहले वर्क निकाल लो एंड डेल्टा यू आपसे पूछा जा रहा है। So we know that W is equal to nothing but minus P external into delta V, right? And P की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है 1 atm, और मुझे atm में पता है 1.01325 into 10⁵ पास्कल होता है। चेंज इन द वॉल्यूम कितना हो रहा है 2.5 माइनस 2, ये लीटर था तो मीटर में चेंज करते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 0.5 यहाँ पे आया, तो मल्टीप्लाई करो 0.5। थोड़ा इसको हम लोग एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.505 इंटू 10⁻²। मैंने इतना यहाँ तक राउंड ऑफ कर लिया, राइट। So this is coming out to be minus 50.5 joule. Now delta U is equal to nothing but Q plus W. Q has been given as 300. W is coming out to be minus 50.5. So answer will be 249.5 joule around. Correct? मेरा आंसर सही है। Yes, yes. तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। No, no. मैं ऐसा थोड़ी मजाक करता हूँ। Okay? हाँ सर। Do one more question, and this last question is for homework. I have some important work at 7:30. ओके Just write down the सर, question. Yes. हाँ तो सर तो तुम हर दिन ऐसे 10 कम दे दीजिए ना, हर दिन जब क्लास होगी ना। Okay, write down the question. An insulated container is divided into two equal portions. An insulated container is divided into two equal portions. One portion contains an ideal gas at pressure P. One container contains an ideal gas at pressure P and temperature T. One portion contains an ideal gas at pressure P and temperature T. The other portion is a perfect vacuum. The other portion is a perfect vacuum. If a hole is opened between the two portions, if a hole is opened between two portions, if a hole is opened between two portions, calculate. And first part is change in internal energy. Change in internal energy. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। And B is the change in temperature. Next one is Q and W also. Okay. So next we will continue in the next class. Okay.